हाय सो जस्ट टू मेक द टॉपिक इंटरेस्टिंग एंड अपीलिंग टू यू कि तुमको डायरेक्टली समझ में भी आ जाए, इशू भी समझ में आ जाए और तुम्हें आंसर राइटिंग में भी हेल्प हो सके। साथ में इसको तुम करंट ट्रेंड्स और करंट इश्यूज़ के साथ रिलेट करते हुए अपने आंसर को प्रोजेक्ट करो तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब इट लुक्स वेरी अपीलिंग टू द एग्जामिनर। नाउ पब्लिक पॉलिसी थ्रू द लेंस ऑफ इकोनॉमी is to be understood from contemporary issues. First of all, the primary goal of public policy making, the primary objective is the betterment or the welfare of the people, right? Now, welfare of the people indicates that somehow the government will be trying to take care of certain section of the society. How the government usually frames policies to economically, you know, affect the welfare of the people by way of subsidies या incentives. अगर कोई एक सरकार कह दे कि कोई एक गरीब वर्ग को लोन जो है कम ब्याज दर पे कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा तो वो इंसेंटिव हो जाता है। किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कोई बेनिफिट हम सस्ते में दे दें तो वो सब्सिडी हो जाता है। तो यानी कि एक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कभी कभी पब्लिक पॉलिसी के अंदर इंक्लूड करने के लिए इकोनॉमिक्स को चेंज करना पड़ता है सब्सिडीज़ और इंसेंटिव्स के माध्यम से के पॉइंट ऑफ व्यू से। But the catch here is that the subsidies and incentives are not always considered to be a very progressive step. The presence of high level of subsidies, the high level of incentives that the government is providing to the ordinary people or to the weaker section of the society, to an extent indicates that the impoverished condition is still persisting within the country. Now, this weaker section of the society represents an interest groups. What are interest groups? Interest groups are the group of those people, those section of the society who want to have a say in the policy making or the law making, right, or in the governance, and they are going to use political tools as a means to achieve their ends, right? So they also sometimes called as beneficiaries, or you can say these beneficiaries are target interest groups. Now, when these target interest groups combine together using a political will, they represent pressure groups. Right. Now, what are the pressure groups? So, pressure groups in this particular segment can be trade unions, pressure groups can be primary agriculture credit societies, pressure groups can be a union of cooperatives, pressure groups can be a union of farmers, Kisan Samoos, Kisan, you can say Sangathan, and all of this. So, they represent pressure groups. Now, you should also understand that when you're talking about the politics from economic lens, more than the political parties, it is largely the interest of the pressure groups that prevails, and that is why the in public policy you can also identify that to satiate the demands of the pressure groups, the economics is all largely considered. Now, in this, if you're a political science student, definitely, and you are projecting your answers, you'll try to quote political theorists that have been there. And the best person to quote here could be Adam Smith, right? एडम स्मिथ को कोट कर सकते हो आप, अमर्त्य सेन को कोट कर सकते हो आप, जस्ट टू मेक योर आंसर्स लुक मोर अपीलिंग एंड मोर अट्रैक्टिव बिकॉज दे वर largely discussing about the politics of welfare economics, right? So, coming to this, now after all, where the economy comes into picture. So, because these pressure groups are generating a bargaining potential, now they are so huge in number, they are so large, either their population is large, or the you can say the area or the geography where they live is large, or the section of the society on which they have an impact is large, right? So they generate en masse a bargaining potential with the government. Now, it can be understood with respect of case study. First, one scheme is a domestic scheme. The other scheme is also a domestic scheme, but with respect to international dynamics. Now, what are they? सो पीएम उज्ज्वला के बारे में बात करें, जो कि अभी रिसेंटली 2015-16 में अनाउंस करी है, जहां पे एलपीजी सिलेंडर्स को आप क्या करते हैं, बेलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को सब्सिडाइज रेट पे देते हैं. Now, please understand this that this liquefied petroleum gas is not manufactured or produced in India, but is largely imported, and largely imported at a very higher price, right? So, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा एक्स्ट्रा दे रही है, लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को सस्ते दाम में दे रही है. अब गवर्नमेंट के बारे में एक चीज़ आपको पता होना चाहिए दैट गवर्नमेंट इज़ नॉट प्रॉफिट मेकिंग बॉडी. गवर्नमेंट इज़ नेवर अ प्रॉफिट मेकिंग बॉडी.
गवर्नमेंट प्रॉफिट तो बनाती नहीं है। तो अब गवर्नमेंट कोई भी चीज़ अगर महंगे में खरीद रही है और उसको सस्ते में दे रही है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आ रहा है? वो सब्सिडाइज्ड रेट, कोई सिलेंडर जिसकी मार्केट में वैल्यू अगर 1100 1200 है, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली की किसी भी महिला सदस्य को वो सिलेंडर 750 800 रुपये में मिल रहा है। तो ये 300 400 का जो गैप आ रहा है प्राइस में, ये आखिरकार इसकी भरपाई कौन कर रहा है? राइट? द बिकॉज द प्राइस ऑफ द पर सिलेंडर इज मच बिलो द मार्केट प्राइस। ना द पॉइंट कम्स कि इसकी भरपाई कौन कर रहा है? राइट? सो यहाँ पे जो टैक्स पेयर्स हैं, अब टैक्स पेयर्स में क्या है, लार्जेस्ट टैक्स कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास? मैक्सिमम टैक्स गवर्नमेंट के पास कॉरपोरेट टैक्स कंपनीज जो पे करती हैं, या इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वहाँ से आता है। तो टैक्स पेयर का मनी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यूज़ कर रही है सब्सिडीज थ्रो अवे करने में टू BPL families. Now, this indicates that the politics of economy and burden sharing in a socialist economy which is driven by public welfare. This is something that you should always quote in your answers, will always make your answer look better. These sophisticated terminologies and statements. So it represents, it's a reflection of the politics of economy and burden sharing in a socialist economy driven by public welfare. And that won't make your reasoning or answer look abjectly incorrect because you are using a current case study, right? This is the recent trend. These are the debates around PM Ujjwala Yojana. Now coming back to the another topic, this was minimum support price to farmers. तो फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट देती है। किसान की लागत लगे मान लो किसी फसल को उगाने में 100 रुपये, तो सरकार ये इंश्योर करती है कि उसके 1.5 गुने दाम पे सरकार खरीद ले, यानी सरकार 1.5 टाइम्स उस पर खरीद ले। तो 100 रुपीज़ में अगर आपने लगाया, एंड इफ़ यू मल्टीप्लाई 100 by 1.5, व्हाट डू यू गेट? 150। सो सरकार 50 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है अगेन किसान को उसकी लाग इनपुट कॉस्ट से ऊपर। द पॉइंट इज, क्यों करती है गवर्नमेंट ऐसा? तो गवर्नमेंट इसलिए करती है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गेहूँ और जो चावल है, ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। गेहूँ और चावल और पल्सेस और ये सब नहीं आएगा तो भारत में फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी। फूड सिक्योरिटी एक ऐसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, जिसमें गरीब अमीर सब आते हैं, राइट? लेकिन आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जब देखें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस गवर्नमेंट इंटरवेंशन को, जहाँ पे सरकार कह रही है कि किसान की लागत कुछ भी हो, मार्केट में वीट और राइस का रेट कुछ भी हो, हम 1.5 टाइम्स ऑफ द इनपुट कॉस्ट पे किसान से डायरेक्टली खरीद लेंगे, यानी सरकार खरीदार बन जा रही है यहाँ पे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ लार्जली ड्रिवन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमीज, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, यूरोपियन एंड अमेरिकन माइंडसेट, वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो ये कहते हैं कि आपके इस इंटरवेंशन की वजह से, इस इंटरफेरेंस की वजह से जो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी होती है एग्रीकल्चर की, वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। होता क्या है, जब सरकार 1.5 टाइम्स पे खरीद लेती है, गवर्नमेंट खरीद लेती है, तो गवर्नमेंट ये खरीद के करती क्या है? इस फसल का गवर्नमेंट दो चीज़ें करती है। एक, हमारे यहाँ पे जो राशन कार्ड के बेनिफिशरीज़ हैं, अगेन उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के थ्रू सस्ते दाम में 5 रुपये पर केजी से लेके 25 रुपये पर किलोग्राम, जिसका मार्केट में रेट 40 रुपये पर केजी या 50 रुपये पर केजी है, वो इतने दाम में BPL फैमिलीज़ को मिल जाता है। और दूसरा काम क्या करती है, ज़रूरतमंद देश जैसे इजिप्ट हो गया फॉर एग्जांपल, जैसे सूडान हो गया, गबॉन हो गया, कीनिया हो गया, सोमालिया हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हो गई, इनको गेहूँ चावल ये लोग पैदा तो करते नहीं हैं, तो इनको चाहिए रहता है, तो हम इनको सस्ते रेट में क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट इतना सारा पैसा लगा रही है, तो होता क्या है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है, उसका जो प्राइस होता है, जो लागत, जो कॉस्ट होती है, सॉरी, वो वेस्टर्न इकोनॉमी के एक्सपोर्ट से कम होती है। तो एक इंपोर्टिंग कंट्री है जिसको गेहूं चावल चाहिए, तो वो इंडिया के राइस और इंडिया के वीट को प्रेफरेंस देता है क्योंकि वो सस्ते में पड़ेगा। नाउ दिस अल्टीमेटली इफेक्ट्स, यू कैन से, द प्राइसेस। सो ये होती है कभी कभी पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमी। अब आप लास्ट में ऐसा समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमी है, द पब्लिक पॉलिसी थ्रू इकोनॉमिक लेंस, समटाइम्स इज ड्रिवन बाय नेसेसिटी और कंपल्शन, बट अदर टाइम्स इट इज largely manipulated due to burden on economic potential, driven by factors that are beyond your control, that are beyond the control of domestic politics. For example, India was largely seen as an exporter of agriculture products and all of this. But recently in 2022, in 2023, India ने बैन कर दिया export of rice and wheat to African nations.
नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इंडिया इतना बड़ा एक्सपोर्टिंग है, इतना बड़ा उसका, ऑब्वियसली ये आपका पब्लिक पॉलिसी ही आता है, बिकॉज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी ओनली, राइट? बिकॉज इट अफेक्ट्स योर bilateral relations, your international relations and all of this. So you cannot separate it away from public policy. Now the point is, जो मैंने second point बताया, sometimes the public policy through economic lens is driven by or is manipulated due to certain factors which are beyond your control. So the banning of export of rice and wheat to African nations also indicate that. Why? Because this public policy decision was based on two conditions which were beyond our control in 2023. First, Russia Ukraine war. Because of the Russia Ukraine war, the international sea lanes of communication of the trade routes were largely affected, and that led to supply chain disruptions. Now, that would definitely would have increased the cost of the exports of India, Indian products, and India would not be able to commit to these African nations दैट हम आपको सस्ते में दे पाएंगे। तो पहला तो रशिया यूक्रेन वॉर, जिसमें हमारा कोई से नहीं है। दूसरा, इंडिया में जो मॉनसून पैटर्न है वो बड़ा अनसर्टेन होता है। तो 2023-2022 में जो वर्षा हुई, रेनफॉल हुई, वो खासा कम हुई। गेहूं और चावल की जगह पे आपको पता होगा वीट एंड राइस बोथ आर टू सच क्रॉप्स विच आर वाटर इंटेंसिव, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, and India is a country where irrigation systems are not that advanced, right? So रेन फेड होते हैं ये सारी क्रॉप्स। अब रेन नहीं हुई तो प्रोडक्शन कम हुआ तो अगेन हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक नेसेसिटी ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है, तो हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, राइट? सो लो प्रोड्यूस कॉज्ड बाय मानसून, अनसर्टेन मानसून पैटर्न्स अगेन लेड टू reformulation of a public policy where you decided not to export your crops, right? So this is where this indicates that sometimes domestic interests supersede or take over international compulsions or international commitments that you have taken. Again, this also reflects the framing of public policy through economic lenses. Now, another leading example. So this was all about agriculture and one sector of Indian economy or one sector of world economy. Another sector of the world economy is manufacturing. Now, in manufacturing, we have production-linked incentive, PLI schemes. नाउ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, गवर्नमेंट ने मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को कहा कि अगर आप हमारे यहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं और हमारे यहाँ पे मोबाइल बनाते हैं, हमारे यहाँ के लेबर को यूज़ करते हैं, तो हम आपको ज़मीन जो है सस्ते में देंगे, बिजली का रेट आपको सस्ते में देंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने लग गई। अब उससे इफ़ेक्ट क्या हुआ? उससे इफ़ेक्ट ये हुआ क्योंकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और डोमेस्टिक मार्केट में उसके जो प्राइसेस होंगे इंटरनेशनल प्राइसेस के कंपैरिजन में कम होने लगेंगे। तो उसी सेम मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल का प्राइस इंडिया में कुछ और है, इंडोनेशिया में ज़्यादा है और दूसरी इकोनॉमीज़ में ज़्यादा है। इससे दूसरी कंट्री कैसे इफेक्ट होती है? दूसरी कंट्री अभी तक जो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रही थी और कमा रही थी, अब वो नहीं कर पाएगी बिकॉज सस्ता प्रोडक्ट आपके यहाँ पे ही मौजूद है। तो इट अफेक्ट्स द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ अदर कंट्रीज टू इंडिया ऑल्सो, एंड दिस ऑल्सो इंडिकेट्स अनदर framing of public policy which is driven by economic factors, your domestic factors, sometimes international compulsions and commitments. So this was all that will help you in formulating a structured or a reasoned answer using contemporary issues. I hope it helps.